Okay, dear friends, now we have already done linear equations in one variable. We have discussed the questions of NCERT, that is both the exercises. We have done almost more than 80% questions. But today we are going to take up the questions from my book. Plus, while discussing the things, while developing the subject, I'll be taking up some questions which will give you insight for competitive examinations also. आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम धीरे-धीरे आपको कोशिश करेंगे कि पढ़ाते समय ही हम आपको वो बेस तैयार करेंगे। तो आप जब भी हम कुछ बताते हैं तो इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ कहते हैं तो आप बगल में लिख लीजिए, क्वेश्चंस बना लीजिए, उनको फिर जाकर के रिफ्लेक्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और देखिए कि हाँ भाई हम लोग whether we are in right direction or not. So at first we'll see one more thing. All the 5 exercises of my book, that is from 7.1 to 7.5, most of the good questions I'll be taking here, plus in between or on the way we'll discuss something more. First question, though this one has been removed from CBSE syllabus, that is NCERT, that variables on one side, this has been removed, but I have just taken because ultimately both the sides we bring to one side only. We have discussed yesterday. So here the very first question, 5 by 11 plus x is equal to 27 by 11, and you have been asked to solve it. So what actually you can write here? You can have x is equal to 27 by 11 minus 5 by 11. Yesterday I told you, if a number is transformed from one side to the other side, क्या करना होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. So this becomes 11. Here it is 27 minus 5, which is equal to 22 by 11. That is equal to 2. So the answer is 2. This is the first one. The second question you are given, that is also a question you have to solve. X by 3 plus 5 by 2 is equal to minus 3 by 2. What actually you can write? X by 3 is equal to minus 3 by 2 minus 5 by 2. Be careful. This 5 by 2 goes to right hand side. It is transformed. So what exactly you are going to have? You are going to have x by 3 is equal to, what is the LCM? LCM is 2. Here it is minus 3. Here it is minus 5. Means x by 3 is equal to minus 8 by 2. I think it is clear. LCM is same. That is how much? Means x by 3 is equal to how much? Minus 4. Therefore, x is equal to minus 4 multiplied by 3 is equal to minus 12. So this is the second question. The third question is, again, we are discussing the questions where variable are on one side. You are given a question, 2x plus 3 plus 3x minus 1 is equal to 102. So yesterday some comment came, or someone has sent me a WhatsApp message. Sir, in standard 8678, please be bit slow. तो अब मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ. आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं स्लो ही रहूंगा. देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 102. मैंने उसी को लिखा, लेकिन अपने अनुसार उसको हमने रीएडजस्ट कर लिया. तो ये हमारे पास कितना हो गया जी? दिस इज 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 102. 2x प्लस 3x 5x, और वो 3 और माइनस 1 था, तो हमने उनको एक साथ रख दिया है. यानी 5x इज इक्वल टू 102 माइनस 2. क्या हुआ? दिस 2 गोज टू राइट साइड. गया ना भाई, ट्रांसफॉर्म हुआ, उस साइड में चला गया, तो प्लस का माइनस हो गया. तो यहां से हमारे पास हो गया 5x इज इक्वल टू 100. देयरफॉर x इज इक्वल टू 100. अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 5 5 दूना के 10 0, दैट इज इक्वल टू 20. सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 20. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. मतलब we have discussed the questions where the variable in which the variables are on one side, not both the sides. Yesterday we have discussed the questions where the variables were on both the sides. दोनों साइड में वेरिएबल था, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था. अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है.
हम इसको कौन सा बोलेंगे ये बात की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये बोलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए अब आप धीरे धीरे क्या सोचना शुरू करिए, अब आप मेरे साथ नेविगेट करिए, कैसे आप सोचते हैं। वही मैंने बताया ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम आपको थोड़ा सा बताना शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 4A ये है कि सम ऑफ 3 consecutive natural numbers, sum of 3 consecutive natural numbers, याद रखिएगा, natural numbers is 27. Sum of 3 consecutive natural numbers is 27. Then find the numbers. Find the numbers. अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। हम कहते हैं लेट 3 consecutive natural numbers, consecutive natural numbers are, यही असली पॉइंट है। हम लिखते हैं x, x plus 1 and x plus 2। आप समझ में आ रही बात? सर ये कहां से आ गया? मान लीजिए कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो। जैसे आप कहते हो कि हमने सर एक नेचुरल नंबर लिया 22, तो अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 23, उसका अगला क्या होगा 24। लेकिन 23, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 22 माइनस प्लस 1, और 24 को क्या लिखोगे 22 प्लस 2। समझ में आ रही बात? कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जब लोगे तो एक बार प्लस 1 होगा, फिर उसका अगला क्या होगा प्लस 1 और हो जाएगा। लिखना हमको चाहिए था x प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस 1, लेकिन हम उसको डायरेक्ट क्या लिख दिए x प्लस 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, इन तीनों का सम कितना है, कितना है जी 27। तो आप क्या लिखते हो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। कितना हो बताओ 3x प्लस 3, x प्लस x प्लस x, 3x 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 27। तो 3x का मान कितना हुआ, हमने क्या लिखा 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 हुआ ना, ये 3 उधर चला गया। भाई देखो x प्लस x प्लस x 3x 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 27, 3 उधर लेके के चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x इज इक्वल टू 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच 24/3 इज इक्वल टू 8। यानी आपने कहा x is equal to 8. So what is the next number? So what is x plus 1? 8 plus 1 is equal to 9. And what is x plus 2? 8 plus 2 is equal to 10. तो आपके पास 3 नेचुरल नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए 8 9 10। जोड़ के देख लीजिए 8 plus 9 17 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 27। तो ये तो तब हुआ जब आपने कहा कि भाई ये हमारे पास क्या थे, ये कॉन्सिक्यूटिव क्या थे नेचुरल नंबर्स थे। तो हमने इनको इस तरह से लिख लिया। अब देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन नंबर ए था, हम अब एक क्वेश्चन नंबर बी करते हैं कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, और हम लिखते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वहां भी नंबर्स ही रहेगा, उसमें भी एस बना लीजिएगा। एस इज 36, क्या बोल रहे हैं 36। देन फाइंड द नंबर्स। देखिए लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव, हमने क्या लिखा इवन नेचुरल नंबर्स आर, हम लिख रहे हैं क्या क्या होगा x, याद रखिए इवन अगर हो रहा तो हम जानते हैं इवन या आड होता है तो दो दो का डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर ये वाला है, मतलब क्या हुआ 2 plus 4 2 plus 2 4
and 4 plus 2, 6 plus 2. You understand? So what are the numbers? Are x plus 2 and x plus 4. समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये x plus 4 नहीं है, वो x plus 2 है। क्लियर हो गया? तो हमने ये क्या कह दिया? हमने कहा कि भाई मान लीजिए ये 3 नंबर्स हैं। अब एज पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? तीनों का सम यानी x plus 2 plus x plus 4 is equal to how much? It is 36। हो तो गया? तो आप क्या लिखोगे? 3x plus 6 is equal to 36। Therefore 3x is equal to 36 minus 6। समझ में आ रहा? 6 बार चला गया, यानी आपने क्या कहा? 3x is equal to 30। Therefore x is equal to how much? 10। x का मान 10 हो गया। तो अगर x का मान 10 हो गया तो what is x plus 2? आपने कहा x is equal to 10। Therefore what is the second number? It is 10 plus 2 is equal to 12। What is the third number? And x plus 4 is equal to 10 plus 4 is equal to how much? 14। जोड़ करके देख लीजिए क्या हुआ? It is 36। अब देखिए इसी में अगर क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ध्यान रखिएगा अब मैं क्या लिख रहा हूं? ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ये यहां है 39। कह रहा है कि 3 ऑड नंबर्स का जो सम है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम कितना है? 39। देन फाइंड द नंबर्स। तो हम यहां लिखते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है? ये 4 क्या हो गया? सी हो गया ना। पहला हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिया था, फिर इवन नंबर ले लिया, फिर हम क्या ले रहे हैं? हम इस पर क्या ले रहे हैं? ऑड नंबर ले रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही होगा यहां पर। हम क्या कर देंगे? ये ऑड नेचुरल नंबर्स अगर हम ले लेते हैं तो ये भी वही होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर एक x होगा, दूसरा x plus 2 होगा, तीसरा x plus, क्योंकि ऑड नंबर में भी बीच में डिफरेंस कितना होता है? ऑड में डिफरेंस कितना होता है? 2 का होता है। जैसे इवन में 2 का होता है, ऑड का होता है। देखिए बहुत जगह लोगों ने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। इवन को लिखा है 2m, ऑड को लिखा है 2m plus 1। हम चर्चा बाद में करेंगे। तो अब देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? तीनों का सम यानी x plus 2 x plus 4 is equal to how much? 39। मतलब हुआ कि 3x plus 6 is equal to 39। Therefore 3x is equal to 39 minus 6, that is 3x is equal to 33। Therefore x is equal to how much? 11 हो गया। तो एक नंबर आपका हो गया 11। x is equal to, मैं यहां से ला रहा हूं, x is equal to 11, x plus 2 is equal to how much? 13 and x plus 4 is equal to 15। देख लीजिए 39 हो गया। तो ये आपका कौन सा हो गया? C हो गया। याद रखिएगा हम क्वेश्चन से यहीं बनाते चले गए। समझ में आ रही बात? अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हम आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये D हो गया। 3 क्वेश्चन हमने अलग से कर दिया। यहां पर क्या बोला है? सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। तो हमने ये कहा कि ये 4 का D है। हमने कहा लेट दी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स होगा 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 11 आर क्या क्या होगा? हम पहले एक तो हमको चाहिए अननोन वेरिएबल चाहिए, तो हमने कह दिया x। अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा? x plus 11 होगा, और तीसरा कितना होगा जी? x plus and x plus 22। कुछ समझ में आ रही बात? x plus 11 x plus 22 कैसे? देखिए पहला होता है 11, दूसरा होता है 22, तीसरा होता है 33, 44। तो ये 22 जो है क्या है जी? 11 plus 11 है। ये 33 क्या है? 11 plus 22 है, मतलब 11 plus 11 plus 11, बेसिकली 11 plus 11 plus 11 है। अगर और कहना होगा तो 11 plus 11 plus 11 plus 11 है।
इसको हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास x है, तो ये क्या हुआ, x प्लस 11 है। ये वाला अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x प्लस 11 प्लस में क्या हुआ, x प्लस 22। अगर 5 का मल्टीपल है तो क्या लिखते हैं, x प्लस 5 प्लस 10। 7 का होता तो x प्लस 7 प्लस 14। इज इट क्लियर नाउ? क्यों, हम मल्टीपल लिखने का मतलब कि हमको और उतना जोड़ देंगे तो अगला वाला मल्टीपल हो जाएगा, जैसे होता ना 22, 23, 24, ये मैंने किया था। तो अब अगर आपके पास मल्टीपल दे दिया है और आपसे कहा गया है इनका सम कितना है, 363 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस हाउ मच 22 इज इक्वल टू 363। भाई तीनों का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव। तो अब हमारे पास कितना हुआ जी, 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। 11 प्लस 22 33। इसका मतलब ये हुआ कि 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 330। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, 3x, याद रखिएगा। 363 minus 33 is equal to 330. Therefore, x is equal to 330 by 3 is equal to 110. तो आपने कहा therefore x का मान कितना हो गया, x प्लस 11 का मान क्या होगा, 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121, और x प्लस 22 का मान क्या होगा, 110 प्लस 22 इज इक्वल टू 132 होगा ना, 2 2 1 3। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए कि सही है, ये आंसर हो गया। चेक कर लीजिए whether it is correct or not। 2 plus 1 3, 3 2 5 1 6 6 and 3, it is 363। The last question here is, what is the last question? The last question is कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5/3। कह रहा है 5/3 मीन्स व्हाट, ये 5/3 है, लेकिन कह रहा है कि दे डिफर बाई 18। तो हमने कहा कि लेट द टू नंबर्स आर x एंड x माइनस 18। भाई डिफर बाई 18 मीन्स व्हाट, आप x प्लस 18 x और x प्लस 18 भी कर सकते थे। सो अब आप लिखोगे therefore x by x माइनस 18 इज इक्वल टू हाउ मच। ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया, ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी में होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम बियॉन्ड जा रहे हैं। तो अगर आपने इसको ऐसा कर दिया तो कितना होगा, इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई जब d होता है तो इसको हम लिखते हैं a इंटू डी इज इक्वल टू हाउ मच, b इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, नई बात नहीं है। हमने बोला डिवीजन होता है उधर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और हमने कहीं कसम थोड़े खा के रखा है कि जब भी ले जाएंगे तो लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, हम राइट से लेफ्ट भी ला सकते हैं। तो राइट से अगर लेफ्ट लेके आओगे तो क्या होगा, फिर डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन तो वही तो हो रहा है, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, दिस इज 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 18, यानी आपने कहा 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 इंटू 18, मतलब कितना हुआ जी, 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 90। अब अगर आप चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 5x माइनस 90 इज इक्वल टू हाउ मच, 3x को इधर लेके आइए। सो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 90। क्या किया, 90 को उधर ले गए, 3x को उधर लेके आए, तो हमारे पास कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 45। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि सही है कि नहीं। तो अगर x इज इक्वल टू 45 हो गया तो x माइनस 18 बराबर क्या होगा जी, 45 माइनस 18 मतलब कितना होगा जी, इज इट 27। अब जरा देख के देखिए कि आपका सही हो रहा है क्या, x बाई एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू हाउ मच, 45 बाई 27। आप करके देखिए, 9 5 45, 9 27, 5/3, मतलब जो दिया हुआ हो सही है। नाउ
We have a question y by 5 minus 48 by 10 is equal to 3 by 5 minus, देखिए इसको देखने से कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 48 by 10 क्यों लिख रहे हैं, हम 24 by 5, हम तो कह रहे हैं कर दो। अगर ये कर सकते हो तो कर दो ना भाई, जो सामने वाला दिया है देने दो। यानी अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि ये y by 5 माइनस, अगर दो दो से कैंसिल करा दोगे तो ये होगा 24 by 5 इज इक्वल टू 3 by 5 माइनस हाउ मच y। चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखो या तो हम इसको ऐसे लिखें कि y by 5 प्लस y इज इक्वल टू 3 by 5 प्लस 24 by 5। क्या किया, इसको हमने इधर ला दिया, उसको उधर ले गए, एक टर्म को उधर ले गए, उस टर्म को। ये देखिए 48 by 10 था, मैंने क्या लिख दिया उसको 24, 2 से कैंसिल होगा। अब देखिए अभी हम कुछ कर नहीं रहे, हम इसको इतना ही छोड़ते हैं, y by 5 प्लस y इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 24 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि y by 5 प्लस y इज इक्वल टू 27 by 5। करें सर हम इसको एलसीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आधी स्टेप बढ़ जाने से कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर देते हो, दोनों पक्षों में, दोनों में कुछ ऐड कर देते हो, दोनों में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो अंतर नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। अगर दोनों साइड में, जैसे आप क्लास में होता है ना, क्लास में सपोज कर लीजिए कि दो बच्चों ने बदमाशी किया है, तो अगर दोनों को पनिशमेंट मिलता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना। अगर ए और बी दोनों को लग गया तो है कि नहीं। या मान लीजिए कि बॉयज ने गलती किया है, गर्ल्स ने गलती किया है, है कि नहीं, तो पता चला कि लड़का लोगों को पनिशमेंट मिल गया, लड़की लोग छूट गई तो खराब लगेगा। अगर दोनों को पनिशमेंट मिलता है, अपने अपने पेरेंट्स से डायरी में लिखवा के लेके आओ कि आई विल नॉट रिपीट दिस वन, हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में वही होता है, देयर इज नथिंग अननेचुरल। दोनों पक्षों में अगर हमारे पास इक्वेशन में है, हम इक्वेशन के इक्वलिटी साइन में है, लेफ्ट साइड है राइट साइड में है, दोनों में कोई ऐड करना है, ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कर लीजिए। दोनों में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कर लीजिए। दोनों, हर टर्म में किसी से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म को किसी से डिवाइड करना है, कुछ नहीं अंतर पड़ता। आई थिंक इट इज, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो अगर हम कहते हैं कि सब में हम किसे थ्रू आउट बाई कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्यों 5 से कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला 5 को हम ज्यादा उसके लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, y by 5 into 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 27 by 5 into 5। देखिए ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, तो यहाँ कितना होगा जी, 6y इज इक्वल टू 27। हम तो यही चाहते थे कि कोई इस तरह से कोई सस्ता चीज मिल जाए आराम से, और जो ही ये 6y इज इक्वल टू 27 आया तो हमने y को लिखा क्या, 27 by 6, फिर 3 से कटेगा, कितना हो गया, 9 by 2। इसकी वैल्यू को वहां रख करके और चेक कर लीजिएगा कि अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आप सही किए हैं, नहीं सेटिस्फाई किया है तो कहीं गड़बड़ किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी इन दिस क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि सब कुछ सामने सामने दिया हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट करूं, हम इसको लिख सकते हैं 4 into 2z माइनस 4 into 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 into z प्लस 2 into 3 प्लस 3z प्लस 3 into 1। यानी हमारे पास कितना हुआ जी, 8z माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 2z प्लस 6 प्लस 3z एंड प्लस 3। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए तो अब हमको देखिए क्या लिखना है। ये हमारे पास कितना हुआ जी, इसका मतलब हम यहां से इसको यहां लेके आ रहा है, 8z माइनस 12 प्लस 3। अब सबको उसमें लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले सलट लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 9, माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। यहां देखिए 2z प्लस 3z इज इक्वल टू कितना होगा जी, 5z। ध्यान से देखिएगा, 8z यहां हो गया, 3 माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, मतलब लेफ्ट साइड हो गया।
2z एंड 3z दोनों को सम कर दिया तो क्या हुआ जी 5z एंड 6 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच 9। अब देखिए हम चाहते हैं कि सभी z एक साथ आ जाए तो क्या होगा 8z - 5z समझ में आ रहा है, ये वाला इधर है इज इक्वल टू 9 + 9, ये वाला 9 उधर चला गया, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जी कि 3z इज इक्वल टू 18। ध्यान से देखिएगा 8z - 5z इज इक्वल टू 3z दैट इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ z इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज z इज इक्वल टू 6। इफ यू वांट टू वेरीफाई जो दिया गया इक्वेशन है उसमें रख करके देख लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया तो हमने कह दिया कि भाई ये क्या है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भाई अगर हम 3 को 5 से करते हैं तो पॉइंट करके और यहाँ 0.6 कर लेते हैं, मतलब हम सबको पलटे या सबको हम किस में बदलते, फ्रैक्शन में बदलते। ध्यान से देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या कि 93/10 समझ में आ रहा है, 93/10 t, ये t था 9.3 था तो आपको पता है ना 9.3 अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, पॉइंट के नीचे 1 करते हैं, 0 करते हैं, इसको हटा देते हैं तो ये कितना हो गया 93.10 प्लस 3/5 चलिए इज इक्वल टू 27/10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने बाई कर दिया एंड प्लस 138/10। अब तो लग रहा है कि चलो भाई ये डेसिमल जो है बहुत डराता है, हमने कहा भैया आप डराइए मत। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप चाहते हो तो आप लिख दो क्या, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। कहना सर 5 का क्या होगा, हमने वहां चल के देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये 93t हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाइड बाई, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 × 3/5 ये कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 10 × 27t/10 है ये कैंसिल हो गया, प्लस 138/10 है और ये 10 है, ये 10 कैंसिल होगा। मतलब क्या हुआ आपके पास हो गया 93t + 6 याद आ रहा इज इक्वल टू हाउ मच 27t + 138। सब सिंपल हो गया। पहले वो डेसिमल था, डेसिमल से हमें डर लग रहा था, फ्रैक्शन में बदला तो थोड़ा और डर लग रहा था, लेकिन जब 10 दिखाई दिया तो लग रहा है कि सब 10 है तो सबको 10 टना देंगे, मतलब क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और खत्म हो जाएगा। अब देखो जब यहां तक हम पहुंच गए तब हमको क्या लिखना है, अब कुछ नहीं करेंगे 93t माइनस देखो 27 इधर आएगा तो हो गया क्या 27t इधर चला गया इज इक्वल टू 138 - 6, ये 6 उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो गया और ये 27t इधर आ गया। तो अच्छा आपके मन में जरूर विचार चल रहा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया, अभी तो नहीं है लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको याद आएगा, स्पेशली अगर आप कोई यूरोपियन कंट्री में और इफ यू गो टू यूएसए एक्सेट्रा तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे इफ यू मीट द इंडियंस एंड बिकॉज आई सी माय स्टूडेंट्स दे से कि सर हम जब इंडियन कोई अगर कोई हम लोगों के वर्क फोर्स में मिल जाता है, इवन समवन फ्रॉम चाइना और वेस्ट व्हाट इज दैट पाकिस्तान और बांग्लादेश, सो वी फील वेरी कंफर्टेबल। वो क्या है सब एक तरह के लोग हैं, बात ना एशियन कंट्री वाले, तो हम वही कर रहे हैं भाई, सभी टी वालों को एक साथ, सभी नंबर वालों को एक साथ कर दिया, लाइक टर्म्स हुआ ना, एक तरह का सबकी भाषा समझ में आएगी। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितना हुआ जी 6 एंड दिस इज 7 13 - 7 एंड 8 - 2 इज इट 66। 66t इज इक्वल टू यहां कितना हो गया 2 132। Therefore, what is the value of t? It is 132/66। दो जाए हो जाएगा जी, दिस इज 2, सस्ते सस्ते निकल गए। सो द आंसर इज t इज इक्वल टू 2। अब जो आपके पास क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन फिर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। आप कहते हो कि हमारे पास 5y + 6, सिलेबस इन द सेंस कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 3y = -12/5। अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, क्या लिख सकते हो, 5 × 5y + 6 = -12, 3 - 3y। We have done the cross multiplication, this into this, this into this। अब देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 25y + 30 = -36 + 36y। कैन यू राइट? 12 × 3 36 माइनस, ये माइनस अगर है तो भारतीय कितना होगा जी? भारतीय 36, तो हमने कह दिया -1 + 36, बाकी तो आपने यहाँ पर कर ही दिया है। अब अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 36y - 36 = 25y + 30। समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों उसको इधर उधर कर दिया? हम इसको इधर लाना चाहते हैं, इसको इधर ले जाना चाहते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास हो गया 36y + 25y। देखिए 36y + 25, आई एम सॉरी, इट इज -25, 36y - 25y = 30 + 36। भाई जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस उधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। कितना हुआ बताइए? देखिए दिस इज इक्वल टू 11y = 66। यहां आकर के बहुत अच्छा लगता है नहीं? y = how much? 66/11 = 6। So the answer what? X = 6. We are going to take up some questions. Question number 11, again it's not in your syllabus, but this will give you the insight how an equation is formed and how the whole thing is seen। कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, कैसे रिलेशन बनाते हैं, यहां से आपको इनसाइट मिलेगा। क्योंकि वंस यू start preparing for competitive examinations, such situations will always what pop up in front of you। आपके सामने ऐसी बहुत सिचुएशन आती रहेंगी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि a group of students went for picnic, half of them were busy in cooking, 1/3 were wandering and remaining 14 were playing kabaddi। Find the total number of students went on picnic। देखिए हमेशा यही होता है, जब पिकनिक हम मनाते हैं या पिकनिक में जाते हैं तो कुछ लोग बदमाश होता है, वो खाली घूमेगा खेलेगा, और जो सिंसियर लोग होता है बैठ के सब खाना बनाएगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब भी पिकनिक प्लान कर लीजिए तो पहले से ही सबका ड्यूटी चार्ट बना दीजिए और टाइम बता दीजिए। इंजॉय करने के लिए गया है, लेकिन क्या करना है भैया, देखो ये वाला काम करेगा तो बर्तन तुम धोएगा, सलाद तुम काटेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? इतना देर तक आप खेलोगे, उतने देर के बाद हम खेलेंगे। नहीं तो पता चलता है कि जो सिंसियर लोग होते हैं वो मतलब गए और लास्ट तक वो खाना बनाने खिलाने में ही बिजी रह गए और बाकी सब मस्ती कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि भाई स्टूडेंट्स गए, हमने कहा कि लेट, इसका सोल्यूशन देखिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट x स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक, वेंट फॉर पिकनिक। तो अब देखिए कुकिंग में कितने बिजी हैं, कुकिंग में बिजी कितने हो गए जी? 1/3। मैंने हमने क्या कह दिया, दिया है ना, सॉरी, हाफ ऑफ देम वेर बिजी कुकिंग। मतलब क्या हुआ कि x/2 किस में बिजी हो गए? कुकिंग में। 1/3 वेयर वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग समझते हैं? बहुआ रहा है सब, मतलब इधर उधर घूम रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी डाल पर चढ़ रहा है पेड़, ठीक है ना? तो वो कितने लोग हैं? वो हैं x/3, 1/3। एंड रिमेनिंग 14 आर प्लेइंग कबड्डी। मतलब ये जो प्लेइंग कबड्डी वाले कितने हैं? 14 है। अब देखिए प्रश्न ये है कि भाई ये तो आपने कह दिया व्यवस्था हमारी यही है क्या, भाई इतने लोग खाना बना रहा है, इतने लोग घूम रहा है, और इतने लोग क्या कर रहा है? खेल रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखिए तो हम ये लिखेंगे क्लियरली, x/2 + x/3 + 14 = x। आप ध्यान से देखिएगा, = x होगा क्या?
भाई हम तो पहले ही मिले कि सब मिला के कितना गया है x, तो x में आधा लोग क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, 1/3 क्या कर रहा है, बउआ रहा है, घूम रहा है, और 14 क्या है, खेल रहा है। यानी इन सबको मिला देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बस यही तो रिक्वायरमेंट थी इसकी। अब हमारे पास क्या होगा, अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा जी, 6 होगा, 3x होगा, 2x हो गया, प्लस 14 इज इक्वल टू कितना हुआ जी, x। इसका मतलब क्या हुआ कि 5x/6 प्लस 14 इज इक्वल टू x। चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5x/6 प्लस 14, मतलब इसको इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको इधर लाइएगा, यही तो आपकी प्रॉब्लम है जिसको सोल्यूशन आपको निकालना है। x माइनस हाउ मच, 5x/6 इज इक्वल टू 14। इन दोनों का फिर एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू, इसका मतलब x/6 इज इक्वल टू 14। आप देखिएगा, देयरफॉर x का मान क्या होगा जी, 14 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 84। अब देखिए 84 है, पहले आपसे क्या बोला था, 84/2 यानी कितना जी, 42 लोग खाना बना रहा था। 84 डिवाइडेड बाई 3 क्या कर रहा था, वॉन्डरिंग, मतलब क्या हुआ, 28 लोग। इसको मल्टी डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 28 एंड 14 वेयर प्लेइंग। अब जोड़ के देखिए, 8 2 10 4 14, 4 2 6 7 1 8 हो गया 84। मतलब आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए एक बहुत पुराना जो पुराना हमारे यहाँ एक कहीं कोई है क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हम लोगों के जमाने में भी ये दिया हुआ था कि इतने ऊंट थे तो इतने ऊंट कहाँ गए। देखिए फॉरेस्ट में 1/4 चले गए, माउंटेन्स में 1/3 चले गए जितने ऊंट थे, और 15 जो थे वो पानी पीने चले गए नदी के किनारे। सो दे वेयर सम कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट। तो हम अगर मानते हैं कि लेट द नंबर ऑफ कैमल्स, देखिए कैमल्स हमारे पास कितने थे, x थे। सबसे पहले कह रहा है कि फॉरेस्ट में, ये टोटल नंबर था, फॉरेस्ट में कितने गए, x/3। माउंटेन्स में कितने गए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा। माउंटेन्स में कितने गए, आई एम सॉरी, x/4 माउंटेन्स में गया, x/3 एंड रिवर के पास कितना दिखाई दिए थे, 15। 15 जो ऊंट लोग था वो कहाँ दिखाई दिया था, आजकल ऊंट नहीं दिखाई देता है, देखने के लिए राजस्थान जाना पड़ेगा आपको, या जाएंगे तो आपको 200 रुपये में चढ़ाना पड़ेगा, कहीं समुद्र किनारे जाते हैं तो वहां पर चढ़ाएगा। तो प्रैक्टिकली क्या है, x इज इक्वल टू x/4 प्लस x/3 प्लस 15, यही तो है। मतलब क्या हुआ, जितने हमारे पास ऊंट थे, जितने भी कैमल्स थे, कैमल्स में हमने कह दिया कि 1/4 यहाँ, 1/3 यहाँ, बाकी 15 वहां। 7x/12 प्लस 15, इसको इधर लेके आइए तो x माइनस 7x/12 इज इक्वल टू 15। अब फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाई 1 हो गया। क्या करेंगे, आप लिखेंगे दोनों का एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 12x माइनस 7x इज इक्वल टू हाउ मच, 15, यानी हो गया 5x/12 इज इक्वल टू 15। यहां तक समझ में आ रही बात। इसका मतलब x 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अभी भी कैंसिल नहीं कराना है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है। x का मान क्या होगा, 15 इंटू 12/5, 5 3 जा दैट इज कितना हो गया, 36। अब जरा मिला के देखिए, तो कहता है कि भाई 36/4 माने कितना हुआ जी, 9 वेयर सीन इन द फॉरेस्ट, फिर 36/3 वेयर सीन ऑन द माउंटेन, और बाकी 15 जो है वो क्या हुआ, दे वेर सीन एट द बैंक ऑफ रिवर। तो अगर सबको जोड़ दिए 9 2 11 5 16 36, आंसर सही हो रहा है। सो दिस वे वी हैव सीन अराउंड 13-14 क्वेश्चंस हियर। लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ करके सभी क्वेश्चंस को आपको स्टैंडर्ड आपके लेवल के लिए, यानी स्टैंडर्ड 8 के लिए नहीं है, वो आपको यू हैव टू जस्ट गेट द इनसाइट। और जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे देन यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड कि हाँ साहब ये हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था।
So that is why just I have given the question. So again, a disclaimer in case there is any uh, mistake or anything has come inadvertently, then my responsibility is to just see that those things are removed if it is pointed out. Otherwise, I'll remove the video from the public domain. Thank you.